रहेंगे और हमारी मनोस्थिति कैसी रहेगी, हमारा मेंटल स्टेट कैसा रहेगा, उसके साथ डील कैसे करना है टुडे ड्यूरिंग लॉकडाउन, व्हाइल यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, व्हाइल यू आर एट होम एंड आफ्टर। ये एक बहुत गंभीर विषय पर उनके मजेदार तरीके के साथ हमारे साथ बात करने वाली हैं मैडम सुजाता प्रभु। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। आई एम गोइंग टू लव दिस सेशन, मुझे इस पर कोई डाउट नहीं है, एंड आई थिंक यू आर गोइंग टू completely support me in that. Yeah, thank you so much, Sujata ma'am. On to you. Welcome to the platform. I'm super excited about today. Thank you, Vijaya. Good morning, everybody. इतनी मिठास सुनने के बाद जो बंदा डायबिटिक भी नहीं उसको भी डायबिटीज हो जाएगा. I think like this. So I'm very happy to be here. But कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहती हूँ before I start. अपॉर्चुनिटी हर चीज में कैसे देखनी है, इनसे मैंने सीखा. चैलेंजिंग टाइम्स को विक्टोरियस कैसे बनाना, इनको देख के मैंने सीखा. हर वक्त एक चेहरे पे स्माइल देना, वो सिचुएशन फिर कैसे भी हो, उनको सुन के मैंने जाना. हर उस चीज को जिसमें आपका कंफर्ट लेवल हो, उसको पार करके कुछ नया सीखना और एकदम मस्त जैसे सीखना, इनसे इंस्पिरेशन लेके मैंने अपनी जिंदगी में उसको अमल लेके आई हूँ. So Vijaya Suvarna, I'm talking about you. Thank you for being in my life. Tremendous inspiration. Good morning, everybody. Thank you, Vijaya, Amol, and my family of LCPL for making this entire event possible and giving me this platform to address such a wonderful audience. Before me, there were 3 speakers, and all the speakers had one common thing in their speech. एक शब्द उन्होंने हर वक्त इस्तेमाल करा, and that word is mindset. If you want to do better in this lockdown, you must have a proper mindset. अगर आपको virtual learning fun बनाना है, उसके लिए भी आपको proper mindset चाहिए. अगर आपको लीडरशिप, पर्सनल लीडरशिप की ओर चलना है, उसके लिए माइंडसेट एकदम जरूरी है. So today the topic is how to deal with perceived impression. So इस पूरे 1 घंटा या 1.5 घंटे के दौरान मैं आपको सिर्फ 2 टाइम डिस्टर्ब करने वाली हूँ, only to put something in chat. Otherwise आपको मुझे सिर्फ सुनना है. So if somebody can tell me through audio also, क्या दिख रहा है आपको? Oh shit. 1 minute, sorry. क्या दिख रहा है आपको? Yes. फॉग से भरा हुआ सुंदर वन दिख रहा है. Wow. Okay. Very good. Somebody else? There is a tree on the cliff of the mountain. You're not audible. There's a tree On the cliff of the mountain. Very good. और पत्थरों के बीच में एक पेड़ उगा हुआ है. पत्थरों के बीच में एक पेड़ उगा हुआ है. Very good. और कोई? Sky is the limit. Sky is the limit. Wonderful. और कोई? Cloudy environment. Sorry, cloudy environment. Very Yeah. good. Very nice. All right. कुछ इम्पॉसिबल पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है. हाँ, ओके. यानी कि कुछ इम्पॉसिबल जो पॉसिबल जितना वही सिकंदर.
अरे वाह, वो तो बड़ी जी फिल्मी जी डायलॉग है, जो जीता वही सिकंदर. वेरी नाइस. Okay, friends, thank you for your responses. Okay. Now I asked a very simple question कि ये picture देखने के बाद में what are your thoughts on it? And many people have even shared in the chat a lot of things. Tell me one thing, who's right and who's wrong? Can you say that somebody is wrong, or can you say somebody is right? No. Everyone is right. Everybody's right. thoughts and this thing are different. So based on that, I mean, I can say that maybe everybody's right or maybe everybody's wrong. But then we are not the judge. That is perception. Human to human, it varies. All right. Thank you for your responses. Now you can mute yourselves, and I'm going to share something with you. There is no existence of. Sorry. Okay. All right. Fine. So I respect your opinions, and now. There is no existence of. Okay. Sir, you are absolutely not audible, but I would like to take this session ahead and kindly mute yourselves. Everyone and each one of you gave me a fabulous interpretation of a simple picture. Each one looked at it from a different perspective. So, ladies and gentlemen, welcome to the session of perceived impressions. To a person, a tree, a mountain can appear as sky is the limit. Somebody said it in a very different manner, Jo Jita wo Sikandar. So respecting perceived impressions is the crux of accepting perceived impressions. This is the crux of this program today. So let's start. एक कहानी से शुरुआत करते हैं. Okay. So a newly married couple, उनकी दिनचर्या ऐसी होती है कि every morning they sit in their balcony and have a cup of tea together. साथ में चाय पीते हैं. बस उसी दौरान सामने की बिल्डिंग में एक औरत अपने धुले हुए कपड़े सुखाने का काम करती है. हर वक्त वो सुखाती है, अच्छे से सुखा के चले जाते हैं. ये ऑब्जर्वेशन ये नई नवेली दुल्हन करती है और अपने हस्बैंड को बोलती है, ए जी देखो तो इस लड़की को कोई बोलता क्यों नहीं कि कोई डिटर्जेंट चेंज करे. ना रंगों में, ना कपड़ों का रंग नजर आता है, ना सफेद कपड़े चमक रहे हैं. पता नहीं कौन सा डिटर्जेंट यूज करती है. हस्बैंड तो पेपर पढ़ते रहते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं. ये कार्यक्रम मेरे ख्याल से एक मिनट, एक सेकेंड. हाँ, मेरा जरा कंप्यूटर इज जस्ट ओके. थैंक यू फॉर बीइंग देयर. जस्ट कम बैक. हाँ, तो ये कार्यक्रम हमेशा चला रहता है फॉर नेक्स्ट डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे. अब आता है फ्राइडे को भी वही सेम किस्सा. जी बता, सब सच्ची मुझे ऐसा मन करता है कि मैं नीचे जाऊं और उसको बता दूं, यारा चेंज कर ले डिटर्जेंट अपना. पति फिर भी कुछ नहीं बोलता है, बिकॉज ही इज रियली नॉट इंटरेस्टेड इन दिस स्मॉल टॉक. ऑन सैटरडे व्हेन दे आर हैविंग अ कप ऑफ टी, सडनली उसकी नजर सामने की बालकनी की तरफ जाती है और वो देखती है कि ये औरत कपड़े सुखा रही है. रंगीन कपड़े में एकदम एक चमक आ गई है, सफेदी की चमकार लग रहे हैं. तो वो अपने हस्बैंड को बोलती है, देखो इतने दिनों से मैं आपको कह रही थी, किसी ने जरूर जाके उसको बताया हुआ है कि अपना डिटर्जेंट चेंज करो, और देखो कितने सफेद कपड़े हो गए, कितने चमक रहे हैं रंगीले कपड़े. तो हस्बैंड टर्न्स अराउंड एंड टेल्स हर कि देखो माय डियर, ये तो मुझे मालूम नहीं कि इसने डिटर्जेंट चेंज करा या नहीं, लेकिन कल शाम को तुम बाजार गई थी, मैं जल्दी आ गया था, कुछ काम नहीं था घर पे, मैंने अपने बालकनी के सब शीशे साफ कर दिए. सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एंटायर स्टोरी? कि हम हर वो घटना जो हमारे साथ घटती है, या हर वो इंसिडेंट, कम्युनिकेशन विद पीपल और अदरवाइज, हम एक विशिष्ट चश्मे के साथ देखते हैं. अभी उस पर कितनी धूल आप जमा के रखते हैं और किस तरह से देखते हैं, ये आप पे निर्भर करता है.
So perceived impressions are those spectacles which have a film of either dust or your experiences when you look at people or when you speak to people. ओके मैं वापस आ गई क्योंकि सुजाता मैम का लगता है क्या कहते हैं वीडियो हैंग हो गया है, वहां पर वो फ्रीज हो गया। मैं उनको मैसेज डाल रही हूँ, चलिए उससे मुझे मैं हाँ वो पूछ नेटवर्क इश्यू सबको है क्या? सबको तो नहीं है ना? आप सब चैट बॉक्स में बोलिए, क्या सबको आवाज ठीक से आ रही है मेरी? आपकी आ रही है? मेरी आ रही है, मतलब मैम का ये हो गया है। मैं एक मिनट रुक जाइए, मैं उनको भेज रही हूँ कि यस थैंक यू सो मच, आई एम गेटिंग एवरीबॉडीज रिस्पांस। मैं इनको लिख देती हूँ प्लीज डिस्कनेक्ट एंड कनेक्ट अगेन, ठीक है? एक मिनट। तो ये बात कर रही थी परसीव्ड इंप्रेशंस के बारे में, परसेप्शंस के बारे में। तो मैं परसेप्शंस के बारे में हैं, तब तक मैं कुछ बताऊं यहाँ पर परसेप्शन को लेकर के। परसेप्शन का ना मैंने एक मूवी मैंने देखा, क्या कहते हैं, एक आप लोग को भूत की कहानी अच्छी लगती है क्या? ठीक है, आई एम श्योर, मुझे तो भूत की कहानियां बहुत अच्छी लगती है, बड़ी थ्रिलिंग लगती है। मैं और मेरे बच्चे कॉन्सेंट्रेट काइंड ऑफ भयानक मूवीज। तो मैंने एक मूवी देखा जिसमें ना एक लड़का रहता है, अभिमन्यु जो है वो एक मेडिकल कॉलेज में वो काम करता है, वो पढ़ाई करने के लिए निकला है। ही इज अ टॉपर, बास्केटबॉल प्लेयर है, ही इज यू नो वेरी हैंडसम, और ही इज और वो ज्वाइन करता है मेडिकल। और आपको ही पता है कि मेडिकल कॉलेजेस में सबसे ज्यादा रैगिंग होता है, सबसे ज्यादा रैगिंग होता है मेडिकल कॉलेजेस में, और फिर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होता है। तो इसका रैगिंग इतना बढ़ जाता है, एक बार इतना बढ़ जाता है उनका रैगिंग कि वो जाकर कंप्लेन करता है डीन को बताता है कि हमारे साथ बहुत रैगिंग हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, हद से ज्यादा, बर्दाश्त से ज्यादा। तो द डीन सस्पेंड इन लड़कों को, वो सस्पेंड कर देते हैं, 5-6 लड़कों को सस्पेंड कर देते हैं। तो क्योंकि उनको सस्पेंड किया, तो आपको पता है ना, एक बार जाके अगर आप कंप्लेन करो तो फिर तो पता है ना आपके साथ क्या होने वाला है। तब तो ये 4-5 लड़के मिलजुल कर इनके साथ इतना अत्याचार करते हैं, न्यू कमर्स के साथ, न्यू फ्रेशर्स के साथ। तो मतलब उनके बुक चुरा लिए, उनका असाइनमेंट को डिलीट कर दिया, कुछ तो कुछ, मतलब ये दे कंटिन्यूअसली हैरेस देम लाइक एनीथिंग। और इतना हैरेस करते हैं कि वो 4-5 लड़के जो एक कमरे में रहते हैं अभिमन्यु के साथ, वो अभिमन्यु को कहते हैं, अरे यार तेरे वजह से हमको कितना तकलीफ हो रहा है यार, मतलब कभी असाइनमेंट गायब होता है, कभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट गायब होता है, कभी डिलीट करते हैं, कभी खाना हमारे रखते नहीं है, हमारा प्लेट गिरा देते हैं, तुमने जाके कंप्लेन क्यों किया? वी वुड रादर नॉट स्टे विथ यू इन दिस रूम। तो अभिमन्यु कहता है कि अरे यार मैं तुम लोग के लिए कर रहा था, तो जाके मैं कंप्लेन कर देता हूँ, बोल देता हूँ यार रूम शिफ्ट करा दे। सो दे शिफ्ट द रूम। अभिमन्यु जो है उसको वो बहुत झगड़ा कर एक ऐसा रूम लेता है जिसमें एक लड़के ने 1 ही साल पहले वहां पर आत्महत्या, ठीक है, गौरव नाम का लड़का है जिसने उस रूम में आत्महत्या की थी। और उस रूम को कोई, मतलब उसमें कोई रहने को तैयार नहीं है, डीन ने भी उस रूम को लॉक कर दिया है। लेकिन अभिमन्यु बहुत लड़ाई करके, झगड़ा करके वो ये रूम में जाके रहने लगता है। रूम में रहने लगता है तो वो ठीक है, मस्त है, बाकी सब रूम में जगह शेयर करनी पड़ती थी, यहाँ पर उसको जगह शेयर नहीं करनी पड़ती है। बाथरूम खुद अकेला यूज करता है, स्टडी का टेबल खुद अकेला यूज करता है, उसको कोई स्ट्रेस ही नहीं है, ही इज वेरी हैप्पी टू बी अलोन इन दैट रूम। 1-2 दिन तक रह जाता है। तीसरे दिन किसी की दरवाजे को जोर जोर से नॉक करने की उसको आवाज आती है। ये जाके दरवाजा खोलता है, बाहर देखता है पूरा कॉरिडोर खाली है, कोई नहीं है। तो ये बोलता है किसने नॉक किया? तो
बोलता है शायद कहीं और नॉक किया होगा, वो एको की वजह से मुझे सुनाई दिया होगा, एंड ही गोज बैक इनसाइड। ये एक बार नहीं कई बार होता है कि जब भी वो बैठा रहता है, पढ़ाई कर रहा है, कोई दरवाजा बहुत जोर जोर से नॉक कर रहा है, धड़ 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 धड़, और जब तक वो दरवाजा खोलता है बाहर कोई नहीं है। एक बार वो खाने के लिए निकल रहा है और जूते पहन रहा है और लाइट सब बंद करता है, लाइट फैन सब बंद करता है, बाहर जाता है और बाहर जाके दरवाजा लॉक करता है, तो बाहर जो प्यून खड़ा है वो प्यून को बोलता है, अरे आप क्या 11 बजे लाइट आउट करते हो यार, 11 बजे को पढ़ाई नहीं करना है क्या हम लोगों को? बोलते हैं अरे वाह, आप लोग तो इलेक्ट्रिसिटी इतना वेस्ट करते हो तो बचेगा कैसे रात को पढ़ाई करने के लिए? तो ये बोलता है अरे मैं कहाँ इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करता हूँ, मुझे क्यों बोल रहे हो? बोले देखो ना अभी कमरे से बाहर जा रहे हो, लाइट तो ऑन है रूम में। ये बोलता है अरे क्या बात करते हो, मैंने अभी बंद किया, और मुड़ के देखता है वेंटिलेटर से दिखता है कि लाइट्स तो ऑन है रूम में, अभी तो बंद किया था लिटरली 5 सेकंड पहले। तो वो खोलकर देखता है, फिर से लाइट बंद करता है, ही इज लाइक सरप्राइज्ड कि मैंने बंद तो किया था। ऐसे 2-3 बार और होता है। उसके दोस्त को, उसके सीनियर्स जो है उसको बोलता है अरे यार तू उस कमरे में रहता है क्या? हाँ 404 में। अरे यार वहां तो बस तू पूछ मत, गौरव की आत्मा है कि नहीं उधर, दिखी कि नहीं तुमको? बोलते क्या गौरव की आत्मा ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये बोलता अरे यार रहने दे, अब गौरव वहां पर उसने वो फैन से लटक के ना खुद को मार के उसने आत्महत्या की थी बस 1 साल पहले, इसी की वजह से उस रूम में कोई नहीं रहता, तुमको इसलिए वो रूम दिया गया है। तो अब जब उसे पता चला, और बार बार लोग उसे बता रहे हैं, बार बार उसको लोग बता रहे हैं कि गौरव का की आत्मा उस रूम में है, गौरव की आत्मा उस रूम में है, कैसा स्टूडेंट था, कैसा दिखता था, कैसे वो लटक के फैन से उसने अपनी जान दे दी। मतलब लोग उसको बार बार बता रहे हैं, और जब बार बार बता रहे हैं तो आप देखेंगे कि अरे ये योगेश ठाकरे ने स्क्रीन शेयरिंग किया है अपने बहुत ही प्यारे बच्चे का, लेकिन तो वो बार बार, और एक समय ऐसा आता है जब उसे गौरव हर जगह पर नजर आता है, ही कैन सी गौरव एवरीवेयर। वो दरवाजा खोलता है तो उसको बाहर गौरव नजर आता है, वो खाना खा के रूम में लौटता है तो उसको गौरव की लाश नजर आती है फैन से लटकी हुई, वो क्लास में बैठता है तो उसको लगता है गौरव बिल्कुल उसके बगल में बैठा है, वो मिरर में शेव करता है तो उसको लगता है गौरव बिल्कुल उसके पीछे खड़ा है। ठीक है, वो आखिर में जाकर के वो डीन को, प्रिंसिपल को बताता है कि सर आप बिल्कुल सही बोल रहे थे, गौरव की आत्मा है, मुझे उस कमरे में नहीं रहना चाहिए था। तो वो डीन बोलता है अरे क्या पागल हो क्या अभिमन्यु, वैसा कोई मतलब भूत वूत थोड़ा ना होता है, हम तो मेडिकल साइंस में है, उसमें थोड़ा ना कोई भूत वूत तो होगा ही नहीं। तो ही से नहीं सर, अभी भी इसी कमरे में मेरे साथ गौरव खड़ा है। बोले कहाँ खड़ा है? सर आप ही के पीछे खड़ा है। तो ये स्टोरी में आखिर में क्या होता है, ये तो बहुत मजेदार है, मूवी है, लेकिन ये परसेप्शन जो है बिल्कुल उस भूत की तरह है कि एक बार जो वो कंधे पर चढ़ गया ना, वो हमारे दिल में बैठ गया, तो फिर हमको वो भूत हर जगह पर नजर आएगा, हर जगह पर। सो ये जो है परसेप्शन इज लाइक अ भूत। तो हम जो ये स्टोरी सुन चुके हैं या मूवी देख चुके हैं, हम लोग जब भी किसी पॉइंट पे हमारा माइंडसेट बनता है ना, किसी परसेप्शन को लेकर के, किसी चीज को लेके हम अज्यूम करते हैं, तो हमेशा पूछते हैं अच्छा गौरव दिख रहा है क्या, ऐसे हम नॉर्मली पूछते हैं। ये मूवी देखिए 404, ये आपको बहुत पॉपुलर मूवी नहीं है, बट मूवी परसेप्शन के ऊपर, और अगर आप साइकोलॉजी के विद्यार्थी हो, अगर आपको साइकोलॉजी पसंद है और आपको आप जानना चाहते हैं करता है, तो ये। और मैं भी पूछना चाहती हूँ सुजाता मैम, आर यू बैक? I'm back, Vijaya. Thank you for holding the fort for me. Thank you so much. ठीक है, I'm so sorry about this. I'm going to mute myself again. So I just told them a small story about, about perception क्या होता है. I think you heard it. Yeah, please continue your story. You began very beautifully. Thank you. Okay, thank you so much. So, ladies and gentlemen, thank you for your patience. क्या है कि आपने सुना होगा कि रेस्टोरेंट में जब भी आप खाना खाने जाते हो तो कोर्सेज होते हैं मील के। पहले आता है सूप, फिर आता है स्टार्टर। सो मेरा शायद आज का टॉक ऐसे ही रहेगा, पहले सूप दिया, फिर स्टार्टर आ गया, फिर मेन कोर्स आ गया। तो इफ देयर आर एनी टेक्निकल ग्लिचेस तो मुझे माफ कर दीजिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको ये इतना इंटरेस्टिंग बना दूं। ओके, तो बात हो रही थी कि परसीव्ड इम्प्रेशंस में हम इतना ध्यान क्यों लगाए? व्हाट इज इट, क्या इतना बड़ा उखाड़ लेंगे अगर लोग हमारे बारे में इम्प्रेशंस बना भी लेते हैं? सो इसको देखने के दो नजरिए। एक तो आप कहते हो कि ठीक है, जैसा मैं हूं वैसा हूं, जैसा मैं हूं वैसे ही रहूंगा। और दूसरा आप ऐसा एक यू कैन हैव दिस पर्टिकुलर स्टैंड कि नहीं, मेरा पूरा प्रोग्रेस जो लोगों के साथ है वो इस पे डिपेंड करता है कि मैं उनके साथ में कैसा बर्ताव रखता हूँ।
और बर्ताव रखता हूं का मतलब है कि आप उनके साथ में किस तरह से पेश आते हैं, किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। सो ये जो टूल मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को ये टूल मालूम नहीं है, बहुत पहले हमने ये सीखा था, लेकिन क्योंकि हम पेशे से ट्रेनर्स हैं, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में हैं, हम भी कभी कभी वो भूल जाते हैं, हम भी कभी कभी चूक जाते हैं, हमारे रिश्तों में भी दरारें आती हैं। दैट्स द टाइम फॉर अस टू रिविजिट दिस टूल। और ऐसा ही कुछ हुआ मेरी जिंदगी में। आई विल टेल यू व्हाट आर द स्ट्रगल्स दैट आई फेस्ड, जिससे मुझे ये टूल को विजिट करने के लिए एकदम मजबूर कर दिया। सो लेट मी शेयर विथ यू माय स्ट्रगल्स। व्हाट वर माय स्ट्रगल्स? Okay. So because of this network issue, I'm not getting my PPT. If I'm not finding my PPT, I'll find it in due time. But let me tell you that what were my struggles? My struggles were ki. Madam, I'm sorry to disturb you. Yeah, tell The me. audio is not clear, madam. It's not. You can't hear me at all. The voice is breaking. You can't hear me at all. Am I audible now? Sujata, I think I can hear, but it's all break. Like half of I can hear. It's not clear, visible. Okay, thank you for that input. But you know, my signal strength is absolutely full. Yeah, Vijay, you were saying something. Yes, Sujata ma'am, we can. Dropping, I feel very clearly. I can personally hear you. I don't know about the others, but Mahesh Goklani sahab कहते हैं you are audible and clear. Ajit Vidyadharan sahab. Actually, everybody is saying that you are very clearly, audible. I don't know who actually wanted help over here. Sir, आप I think आपका network, अगर आप वीडियो ऑफ करते हैं तो हो सकता है कि it might be a little clearer. Can you please check once again? जिन्होंने अभी पूछा, I don't know who asked you the question. Yeah, this is Shahid here, madam. हाँ शाहिद सर, शाहिद जी, is off. अब ठीक है, अब सुनाई दे रहा है? हाँ, it's okay. Yeah. हाँ, all right. Thank you so much. Yes, ma'am. Please continue. Okay, I'm just trying to, Vijay, because I went off the air, I was not able to get my PPT back. So I just wanted to, get it going. I just have to get my PPT back. So can you just give me a minute? Okay, so any case, we'll try that when we're talking to each other. All right, so what were my struggles? My struggles were being in sales and marketing for so long, being in this training industry for so long, I was not meeting people of lately. Now, meeting people is our business for procuring business or for understanding what are their challenges. I was not doing that much. I have a greatest problem that I am, as you can see right now, I'm not computer literate. Now, that's not a big, what do I say, an achievement in the era that we are right now. You must be computer savvy. So I am struggling in those areas. Social media और मेरा divorcee का संबंध है, दूर का रिश्ता नहीं है social media और मेरा, because I do not belong to that school of thought. But I really decided कि these struggles I realized, but they were there with me for a very long time. This is when I decided कि मुझे कुछ करना है. मैं ये हमेशा, और हम क्या करते हैं ना, struggles जब हमारी जिंदगी में आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पैदाइशी बहुत बड़े स्टोरी बाज हैं. हम ऐसी बढ़िया स्टोरीज क्रिएट करते हैं कि वी मेक इट अवर रियलिटी. तो अगर सपोज करो, मैंने आपको अभी बताया कि आई एम नॉट वेरी कंप्यूटर लिटरेट, मेरी इरा के लोगों के साथ अगर मैंने बात करी कि अरे यार, ये आजकल मेरे को समझ में नहीं आता है वर्ड में वो कैसे चेंज करने का, तो मेरे जैसा बंदा बोलेगा, हाँ यार सुजाता, सच्ची में मैं भी वही फेस कर रहा हूँ, तू सही बोल रही है. दिस मीडिया, सोशल मीडिया, दिस कंप्यूटर इज अ बिग प्रॉब्लम. व्हेन दे से समथिंग लाइक दिस, मुझे बड़ी चुस्ती फुर्ती आती है कि आई एम नॉट द ओनली वन. एंड व्हाट डू? I don't do anything about it. But just imagine if I say this to a person like Vijaya. Vijaya यार, मुझे ना कंप्यूटर आता है और सोशल मीडिया से मुझे सब एब्सोल्युटली एक तरह का एक एवर्जन है. The first thing Vijaya will say is that, क्या बात कर रहे सुजाता मैम, आप ऐसा बोल रहे हैं, it's the need of the hour. If you say that you don't know computer, how am I supposed to even talk to you about projects? जब ये शब्द कान पे पड़ते हैं, तब यू सडनली वंडर कि वही क्या हो रहा है, व्हाई शी सेइंग लाइक दिस टू मी. तो आपके पास दो तरीके हैं, या two ways you can deal with this kind of comment.
एक तो विजय सुवर्णा से आप जिंदगी में दोबारा मिलेंगे नहीं, बिकॉज उसने वो चीज कही नहीं जो आप सुनना चाहते हैं, या विजय सुवर्णा की कही हुई बात इतनी आपको चुभे कि यू डू समथिंग अबाउट. So there are options which are available to you. So this is what I decided, that I should revisit this tool. Joseph Luft and Harry Ingham, they are American psychologists. उन्होंने 1955 में ये टूल इसने ये टूल को डिस्कवर किया. ये टूल इस तरह से है कि ये आपको आपके पर्सनालिटी के वो पहलू निखार के सामने लाता है जो लोग आपके बारे में सोचते हैं. इस तरह से आपको एक पूरा आपका एक पर्सनालिटी का एक क्या बोलते हैं एक फ्रेमवर्क मिल जाता है कि लोग आपको आपके वे ऑफ कम्युनिकेशन से, या आप किस तरह से उनसे बर्ताव करते हैं, या आपके बॉडी लैंग्वेज से आपने उनके दिमाग में क्या छाप छोड़ी हुई है, ये आपको वो टूल बता देता है. Now you will have to give me just a minute before I एक मिनट, I'll just get my I'm just trying to get my desktop, so the PowerPoint here, so bear with me for a minute, please. Vijaya, if you can just take over for a minute till I get the PowerPoint on. Yes, definitely. Thank you. अरे हाँ, अरे मैंने तो आपको गौरव के बारे में पूरा आधा ही बताया, पूरा बताया नहीं. उसको कहाँ भूख दिख रहा था और फिर क्या क्या करता था वो वहां पर. तो गौरव के बारे में मैं बता रही थी कि परसेप्शन में क्या क्या होता है. तो अगर आप लोग ने स्टोरी से डिस्कनेक्ट कर लिया हो तो आप फिर से सुन लीजिए कि गौरव जो है वो तो मतलब तो गौरव जो मर गया था और अभिमन्यु जो है उसको हर बार जगह पर देख रहा था. तो इस स्टोरी में आगे क्या होता है कि वो जब मैंने कहा ना, वो जब शेव करने के लिए मिरर के सामने है तब भी दिख रहा है, जब वो क्लास में बैठा है तब भी दिख रहा है. उसको कई बार बातें करता है किसी से, तो जो व्यक्ति इसके सामने कोई है नहीं वो तो बातें कर रहा है. तो लोग पूछते, उसके दोस्त पूछते हैं, अरे अभी क्या कर रहा है तू? बोलते अरे नहीं यार मैं बातें कर रहा हूँ, मैं डिस्कस कर रहा हूँ अपने चैप्टर के बारे में. तो बोलते तो किस दोस्त बोलते किससे बात कर रहा है? नहीं अभिमन्यु से बात कर रहा हूँ, वो अपने गौरव से बात कर रहा हूँ. बोलते अभी यहाँ कोई नहीं है. ठीक है, तो अरे यार तुम लोग रहने दो यार, अभिमन्यु बस मेरे साथ ही है, आप लोग मुझे डिस्टर्ब मत करो. उसके बाद वो बास्केटबॉल प्लेयर है ना, तो उसके सीनियर्स आते हैं उसे बुलाने के लिए कि चल अभिमन्यु, मैंने सुना हमने तो सुना तू बहुत बड़ा 30 मार खान बास्केटबॉल प्लेयर है, चल खेलते हैं. तो अभी बोलता है नहीं ऐसे बात करता है. अरे नहीं यार हम दोनों यही ठीक है. वो लोग पूछते हैं हम दोनों कौन? बोलते नहीं मैं और अभी, हम दोनों को लगता है कि हम वी आर बेटर वॉचिंग, हमको अभी पार्टिसिपेट नहीं करना है. लोग बार बार आके बताते हैं गौरव को, यार मतलब अभिमन्यु को कि गौरव है नहीं. लेकिन जितनी बार वो बोलते हैं ये उतना ज्यादा विश्वास करता है कि गौरव है. तो परसेप्शन का वो स्टोरी जो है जहां पर मैंने बताया, उसका सबसे बड़ा ये मैंने पॉइंट हमेशा नोटिस किया है कि जब पहली बार कोई हमको बोलता है कोई चीज ना, जब जैसे सुजाता मैम ने अभी भी कहा कि अभी कंप्यूटर नहीं आती है, तो हम जब कहते हैं ना कि मुझे कंप्यूटर, आई एम नॉट वेरी टेक सैवी, मैं कंप्यूटर सैवी नहीं हूं, जब पहली बार हम कहते हैं तो हमको विश्वास है, हम अब विश्वास है और थोड़ा सा बिलीव करते हैं. कहीं ना कहीं दिमाग बोलता है कि अरे यार ये 100% विश्वास नहीं कर सकते, थोड़ा विश्वास कर सकते कि भाई हाँ मुझे कंप्यूटर नहीं आती है. सेकेंड बार, थर्ड बार, फोर्थ बार हम रिपीट करते हैं ना, तो हर बार जब हम बोलते हैं वो थोड़ा ज्यादा सच लगने लगता है. उसके बाद 4-5 लोग हमारे इर्द गिर्द में ऐसे लोग अगर मिल जाएं जो हमको बोले अरे यार ये क्या लाइफ है यार, कंप्यूटर के थ्रू थोड़ी ना कुछ होता है, कंप्यूटर सीख के क्या कर लेंगे भाई, हम लोग तजुर्बे से यहाँ तक पहुंचे हैं, कंप्यूटर नहीं सीखा तो क्या आगे नहीं बढ़ेंगे क्या लाइफ में? अगर ये 3-4 लोगों ने बोलना शुरू किया तो वो और सच लगने लगता है. 8-10 बार अगर हमने खुद से बात कर ली और 8-10 लोग मिलकर हमको बताए कि कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी सीखने में कुछ नहीं रखा है भाई, इतना स्ट्रेस कौन लेगा, अगर ये उन्होंने रिपीट कर दिया तो आपका दिमाग विश्वास करने लगेगा कि एक, कंप्यूटर इज यूजलेस, 2, आप कंप्यूटर सीख नहीं सकते, आपके अंदर वो काबिलियत है नहीं, 3, कंप्यूटर करके कौन सा आगे बढ़ना है हमको लाइफ में, या टेक्नोलॉजी सीख के कौन सा आगे बढ़ना है. ठीक है, 4, और दुनिया भर के लोग बेवकूफ है, मैं अकेला ही एकदम शाना हूं. मतलब ये 4 विश्वास 100% हो जाता है जब हम बार बार किसी चीज को रिपीट करते हैं और हमारे इर्द गिर्द के लोग हमको रीइंफोर्स करते हैं. परसेप्शन का सबसे बड़ा डर तो यही है
कि the more you repeat it, the more you start believing it. तो सुजाता मैम सही कह रही हैं. मेरे पास अगर कोई आए और बोले कि अरे यार विजया, आई एम नॉट वेरी ओके विद टेक्नोलॉजी, विजया मैम जरा, मैं तो वो तो बहुत प्यार से बता रही है कि मैं क्या बोलूंगी. ठीक है, जिनको मैं बोली हूँ आप उनसे एक बार पूछ लीजिए कि मैं क्या बोलती हूँ. ठीक है, थैंक यू. Okay, thank you. Thank you so much for holding the fort for me, Vijaya. And to all the people who are here, listening to me, your patience is absolutely appreciated by me. So here's the screen. I'd like you to okay, so I was just telling you about my struggles. Not enough networking, or I meet more clients. Fear of failure, not willing to explore new territories, computer illiteracy, and not wanting to try out something new. मुझे हमेशा डर लगता था कि कभी मैं हो गई तो what should I do? So this used to trouble me a lot. Okay. So I'm sure that you, at this point of time in your life, are also having your own struggles. If you have a pen and paper, note it down and keep it to yourself, because after the session, you may want to revisit them. So these are the struggles, maybe 2 or 3, which you are having challenges right now, which you are facing, and which is hindering your progress. So those struggles आप note कर लीजिए जब भी time मिले, because post this session, I will compel you to visit this again. Now, what is this self-development tool? This tool is called the Johari window. The Johari window is known as a tool of self-discovery, self-realization, self-awareness. ये जो window, Johari window है, जोसेफ लुफ्ट और हैरी इंगम, 2 अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे. इन्होंने 1955 में they brought this concept together. जोहारी क्यों? क्योंकि जोसेफ का जो और हैरी का हैरी. So that's why it's known as जोहारी विंडो. So वो कहते हैं कि आपने पुराने जमाने में आपने विंडोज देखे होंगे. विंडोज के खाने होते हैं, जैसे कि हम उनको विंडो पेन बोलते हैं. So इसमें क्या होता है कि 4 खाने होते हैं जोहारी विंडो के. Now let me show you what I mean by that. Okay, so this is your Johari window. Okay, so Johari window के आपके 4 खाने होते हैं. The first one is open self. Open self क्या होता है? और ये open self क्या होता है कि इसमें आपके बारे में information आप भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं. So information about you that both you and others know. Yash, there is somebody whose mic is on. They're not on mute. So can you just see whose it is? Because it's creating a disturbance. So the first self is the open self or the open arena, जहाँ पे आपकी personality सभी लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि आपके बारे में जो बातें हैं लोग अच्छी तरह से जानते हैं. Second one is the blind self. Blind का मतलब क्या है? जो अनदेखा है. अनदेखे चीजों में क्या होता है कि लोग आपके बारे में कुछ ऐसी चीजें जानते हैं बट आप नहीं जानते. So what it says is, I don't know, but you know. Open self में क्या होता है? I know and you also know. Blind self या blind spot जिसे कहते हैं, इसमें I don't know, but you know some things about me that I am not aware of. Come to the hidden self. What is the hidden self? Information जो मुझे ही मालूम है, हमारे बारे में हमें सब पता है, लोगों को मालूम. So this is called the hidden self. मतलब ये फसाड है. फसाड मतलब एक मास्क है, मुखौटा है, जो लोगों को आपके मुखौटे के पीछे दिख नहीं रहा है, आपकी पर्सनालिटी के उन कुछ चीजें. Unknown self क्या है?
अननोन सेल्फ क्या है? आई डोंट नो, यू ऑल्सो डोंट नो। मतलब अननोन सेल्फ में मुझे भी अपने बारे में वो चीजें मालूम नहीं और आपको भी मालूम नहीं। So this is a totally area which is absolutely unknown to the both the parties. So far the Johari window has 4 aspects of your personality. एक में open है जहाँ सबको सब कुछ मालूम है, आपको भी मालूम है अपने बारे में, लोगों को भी मालूम है। Blind self में I don't know about me, but you guys know something about me. Similarly, you are talking about hidden self, wherein hidden में मुझे अपने बारे में ऐसी चीजें मालूम है जो लोगों को आसानी से दिखती नहीं है। एंड अननोन सेल्फ में अगेन नॉट नोन टू यू एंड नॉट नोन टू अदर्स। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन अपीयर इन द हिडन ओपन सेल्फ? ओपन सेल्फ इज बेसिकली ओपन एरिना में अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अभी विजया ने मुझे मेरा इंट्रोडक्शन दिया, शी इज वेरी ह्यूमरस। ये मैं अपने बारे में जानती हूँ और ये जो लोग मुझे जानते हैं वो भी जानते हैं कि सुजाता प्रभु इज एक्सट्रीमली ह्यूमरस व्हेन शी टॉक्स। तो ये मेरा जो पर्सनालिटी का पहलू है ये आता है ओपन एरिया में। नाउ कम टू द ब्लाइंड सेल्फ, बट कम टू द हिडन सेल्फ। हिडन सेल्फ में क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ, ये मेरे बहुत ही करीब लोगों को मालूम है, बट माय अक्वेंटेंसेस इनको मालूम नहीं है। सो ये बात है कि मैं ही जानती हूँ, लोग उसके बारे में नहीं जानते। सिमिलरली हिडन सेल्फ में मुझे अगर मैं बात कर रही हूँ, कोई मुझे छू ले पीछे से और मैं बात कर रही हूँ किसी से और कोई मुझे पीछे से ऐसे छू ले, मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सो ये मेरे बारे में सब लोगों को मालूम नहीं है, तो ये मेरा हिडन सेल्फ है। सो ये सब कुछ चीजें ऐसी है जो इन सब क्वाड्रेंट्स में फिट होती है। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस जोहारी विंडो? 4 खाने तो आपको समझ आए हैं, अभी ये तो हमने जान लिए मैडम, इसके आगे क्या? इसके आगे ऐसा है, जोसेफ लुफ्ट ऑफ हैरिंगम कहते हैं कि आपका जो ओपन अरीना है या ओपन सेल्फ है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए, ब्लाइंड कम होना चाहिए, हिडन कम होना चाहिए, अननोन तो खैर हम किसी को मालूम नहीं है, बट यू हैव टू इंक्रीज द ओपन एरिया ऑफ योर लाइफ in order to be an approachable person, in order to be an acceptable person, in order to be a person where anybody can come to you and speak their mind. ये ओपन एरिया आपका बढ़ना चाहिए। नाउ ब्लाइंड स्पॉट में अगर आपको कुछ ऐसी चीजें पता चलती है जो आपको मालूम नहीं है और आपको इम्प्रूवमेंट करना है, ना एक सवाल आपके दिमाग में आता होगा कि before even you go to the Johari window, there is only one person in your entire life that you have the capacity, capability उसको change करने की, and that person is the person you stare in the mirror every day. That person is you. बाकी किसी को change करने का आप में क्षमता ही नहीं है, because आप में वो पावर नहीं है कि आप किसी और को चेंज करें। द ओनली पर्सन दैट यू कैन चेंज इज यू एंड यू अलोन। देयरफॉर ब्लाइंड स्पॉट में आपको ऐसी चीजें पता चलती है जो आपको मालूम नहीं है, कोई और आपको बता देता है भाई ऐसा है। व्हाट डू यू डू? इंक्रीज द ब्लाइंड एरिया। देयर इज अ प्रोसेस फॉर यू टू ब्लाइंड एरिया को अगर ओपन एरिया में इंक्रीज करना है तो you have to go and ask for a feedback. When you ask for a feedback, you come to know कि बंदे ने या बंदी ने जो भी चीजें आपके बारे में ब्लाइंड एरिया में कही है वो किस हिसाब से कही है। क्या ऐसा इंसिडेंट है जिसपे उनको मजबूर कर दिया उनको कि मैं आपके बारे में ये सोचता हूँ। That is feedback. Feedback is something that you go and ask कि भाई इसका आपने मुझे ऐसे बताया हुआ है, can you just elaborate, can you tell me कि ये क्यों हो रहा है। हिडन एरिया में अगर चीजें आती हैं जो आपको मालूम है और लोगों को मालूम नहीं है, what happens in the hidden area, आप किस तरह से उसको, जैसे मैंने आपको अभी मेरे बारे में बताया
कि मुझे सिंगिंग करना अच्छा लगता है और मैं अच्छा गाती हूँ। अब ये तो मैं नहीं कर सकती हूँ कि हर दूसरे टाइम पे मैं गाना स्टार्ट कर लूं और लोगों को पता चले कि आई एम अ गुड सिंगर। आई कांट डू दिस, कैन आई? नो। सो व्हाट आई कैन डू, अगर आप लोगों ने लास्ट 2-3 डेज में देखा होगा तो विजया हैड कम ऑन सम प्लेटफॉर्म फनटेनमेंट, जहाँ पे उन्होंने बहुत खूबसूरत गाने गाए। People who don't know this part of her personality understand कि विजया सुवर्णा can sing beautifully. That is one way of exposing कि भाई मैं गाती हूँ अच्छा। दूसरा, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मुझे कोई ऐसे मैं बात कर रही हूँ, मैं एक्सप्लेनिंग समथिंग, किसी से एकदम डीप कॉन्वर्सेशन में हो, कोई मुझे पीछे से ऐसे हाथ पीठ पे हाथ रखता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। So what do I do in conversations whenever I'm speaking to people who matter to me? I will make it a point to tell that person, वो बंदे से या वो बंदी से जिसको मुझे एतराज है, उसको अच्छे से मैं बता सकती हूँ कि भाई ऐसा है, मैं बात करती हूँ और आपकी ये आदत है पटाख से मेरे पीठ पे ऐसे हाथ मारने की, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। आइंदा से आप प्लीज ख्याल रखेंगे। This is what you have to tell this part of your personality. ब्लाइंड एरिया में आप आस्क करते हो आपकी ओपन एरिया बढ़ाने के लिए। फीडबैक इज अबाउट आस्किंग, एंड हिडन सेल्फ को अगर ओपन एरिया में लेके जाना है, दैट इज अबाउट टेलिंग। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं अच्छा गाती हूँ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब तुम मेरे पीठ पे हाथ रखते हो, जब मैं कॉन्वर्सेशन में हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। So this is the way this entire window works. Now let's come to the unknown self. Unknown self क्या है? Unknown self में मैंने आपको बताया कि ना मैं जानती हूँ ना आप लोग जानते हो। So unknown self में हमेशा वो चीजें उभर आती है जब क्राइसिस सिचुएशन होता है, क्योंकि तभी पता चलता है ना कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। So let me give you some examples. My mother is a cancer survivor. भगवान की दया से शी इज कैंसर फ्री, बट उस वक्त उनको कोलोन कैंसर हुआ था और मुझे स्मेल्स से बड़ी एलर्जी है, मुझे ओसीडी है, मतलब साफ सफाई का मुझे बहुत एक जरूरत से ज्यादा, हद से ज्यादा कीड़ा है। उस टाइम पे मेरी माँ 81 इयर्स की, लास्ट में ऑन 6th of May शी अंडरवेंट एन ऑपरेशन। कोलोस्टोमी बैग अवॉइड हुआ, बट she was supposed to wear diapers for an entire month. वो महीना था यही मई का महीना। मई के महीने में सभी आया बाईस गांव चले जाते हैं, because they have this time only to go to native place. हर उस डे केयर सेंटर, हर उस केयर सेंटर में फोन किया, बट मुझे आया नहीं मिली। मम्मी को घर लेके आए। I didn't know कि मेरे में वो काबिलियत है कि मैं उनकी देखभाल करूं। देखभाल मतलब मेडिसिन देना नहीं, उनके डायपर्स चेंज करना, उनको क्लीन करना, उनकी हर बात पे हर डिस्कम्फर्ट को बिना नाक मोड़े हुए, बिना किसी चेहरे पे शिकन लाए हुए काम करना। मैंने उस दौरान ये देखा कि मैं ये कर सकती हूँ। आज ये क्वालिटी मेरी माँ को भी मालूम है और मुझे भी मालूम है, तो वो जानती है कि यदि मुझे कुछ हुआ तो सुजाता है मेरे लिए। That means this particular part that I can come and take care of sick patients is a quality which I came to know, and it goes slowly into my open area because ये मेरी माँ जानती है, मैं जानती हूँ, मेरे फैमिली मेंबर्स जानते। अननोन सेल्फ में ये ऐसे उभर आता है कि जो आप, फॉर एग्जाम्पल लेट्स लुक एट हमारे ऑफिस की बात करें, बहुत सारे कलीग्स हैं, हम लोग प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। एक आध बार प्रोजेक्ट पे काम करते हुए आपको एक ऐसी चीज पता चल जाती है एक अपने टीम मेंबर के बारे में, जिसने आप जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं। एक मामूली सा क्लर्क, आप उनको सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को बोलते हैं, लेकिन जिस तरह से वो आपको एक रिपोर्ट पेश करता है इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, आपको उसकी तरफ का देखने का रवैया बदल जाता है कि एक क्लर्क होने के नाते उसने वो सब पहलुओं को नजर रखा हुआ है जो प्रोजेक्ट के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। वेरी प्लान्ड इंफॉर्मेशन।
So I will give you another story which goes by WhatsApp पे चली थी ये story, शायद बहुत लोगों ने सुनी है. There was a car manufacturer. उन्होंने एक rich बंदे के लिए बहुत ही बढ़िया state of the art car manufacture कर ली. अब दिन आया उसको डिलीवरी करने का. Now डिलीवरी करने के टाइम पे they suddenly realize कि जब कार को बाहर निकालना है, जो उसका आउटलेट है गराज का, वो थोड़ा सा लो है, जिसकी वजह से जो कार है उसके जो हुड है वो स्क्रैच या डेंट डेफिनेटली हो सकता है. तो ओनर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वो एकदम प्रॉब्लम में पड़ गया. उसे अरे यार इतना बड़ा अच्छा क्लाइंट है मेरा, मैं कैसे उसको अभी हाउ कैन आई डिलीवर दिस कार. तो उसके बहुत सारे जो थिंक टैंक है, यानी कि सब टॉप मैनेजमेंट के लोग आ गए, पेंटिंग डिवीजन का आ गया, सर डोंट वरी पेंट हो जाएगा, आई विल पेंट इट एज गुड एज न्यू. कोई वेल्डिंग वाला आ गया, बोले स्क्रैच, आई विल सी टू इट कि बराबर से उसको इस तरह से स्मूथ करूं आपको नजर ही नहीं आएगा कि कोई डेंट था, व्हाटएवर. सब लोग अपनी इंफॉर्मेशन उसको दिए जा रहे हैं. दूर एक बैठा हुआ सुकड़ा सा आदमी जो गराज साफ करता है, आफ्टर ऑल दिस डीजल वीजल या जो भी पड़ा हुआ है, वो सहमे हुए सिकुड़े हुए अपने एक मैनेजर जिससे उसकी बातचीत होती थी आके बोलता है, सर मैं एक सुझाव रखूं क्या? तो मैनेजर बोलता है, यार तू भी बोल ले, सब बोल गए हैं. He says कि सर अगर आप सभी टायर की हवा निकाल दे ना तो वो गाड़ी आसानी से बाहर जा सकती है. Now look at this. Nobody knows about this man that he is capable of giving out of the box solution. अभी उसको ये पता चल जाता है, सब लोगों को पता चलता है कि ये बंदे ने इंफॉर्मेशन दी है and this everything is solved. So this उसका ये पहलू एक सिचुएशन की वजह से उभर आता है. नहीं तो वो बंदा साफ करते, गराज साफ करता है, रोज काम पे आता है, कोई मतलब ही नहीं है कि उसकी इंटेलिजेंस को कोई टेस्ट करे. बट सच इन सिचुएशंस ब्रिंग आउट समथिंग आउट ऑफ यू. अब ये पॉजिटिव मैंने बता दिया. There is something, a negative thing also can come in the unknown area. What could be that negative thing? कि whenever a crisis happens at home, the person who sits beyond in the blanket is you. क्योंकि आपको क्राइसिस मतलब आपके हाथ ठंडे पड़ जाते. तो फैमिली जो आपको एक अलग पर्सनालिटी से देखती है, जब भी क्राइसिस होता है, जब आपके तरफ देखते हैं, ये पता चलता है उनको कि भाई क्राइसिस के वक्त इसको छूना भी मत, क्योंकि इसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते, उसको कुछ काम सूझता ही नहीं. सो ये आपका पहलू उसी वक्त उभर के आता है. So this in short is a Johari window. The importance of Johari window is to find out कि हम क्या impressions लोगों को दिए जा रहे हैं और इस वजह से हमारा और उनका तालमेल किस तरह से affect हो रहा है. Now Johari window करना is not necessary. ये कंपलसरी नहीं है. बट इफ यू वांट सेल्फ डेवलपमेंट, आपको यदि चाहिए कि आपकी जो टीम है, आप अगर बॉस है किसी यूनिट के, आपकी जो टीम है वो आपको एक कौन से नजरिए से देखती है जिसके कारण कोई चीजें, काम की चीजें सही वक्त पे नहीं होती है, ये अगर फाइंड आउट करना है, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू यूटिलाइज. नाउ आई एम गोइंग टू बी डूइंग अ जोहारी विंडो. मैं खुद एक जोहारी विंडो, and I'm going to invite couple of people in the audience who know me. जोहारी विंडो उनके साथ करिए जिनके साथ आपका संपर्क रहता है. कोई एरे गेरे से जोहारी विंडो नहीं करिए, बिकॉज वो आपके बारे में कुछ जानता नहीं है और आपके कुछ वाइटल इनपुट्स दे नहीं सकता. So there was a question which was asked by one of the music academy teachers to me. She runs a music academy. सुजाता, मैं जोहारी विंडो अगर ऐसे सबको पूछते गए तो वो बोलेगी कि आपका आवाज अच्छा नहीं है, आपका ये अच्छा नहीं है, आपने ये बराबर उस वक्त किया नहीं था. So I'm not interested in listening to all this. Absolutely right. You should not ask all and sundry. You must ask people. जैसे कि अगर इस टीचर का हम एग्जाम्पल ले लें जो एक म्यूजिक अकेडमी चलाती है, people whom she has hired as music teachers, उनका ओपिनियन मैटर करता है. उसके हस्बैंड उसके सब क्रिएटिव्स में, उसके सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में बराबर के हिस्सेदार है, उनका ओपिनियन मैटर करता है. इनके साथ में जोहारी विंडो किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता चलता है कि किस तरह से करने से आपकी पर्सनालिटी और उभर के और निखर के आ सकती है.
So I am sure that you have understood in the concept of the Johari window. Now, to make it easy, you can do Johari window. आप दो तरीके से कर सकते हैं. एक तरीका ऐसा है कि आप डिस्क्रिप्टिव लाइंस आपके बारे में, आप क्या सोचते हैं आपके बारे में. आप अगर सुजाता, सब मेरी बात हो रही है, सुजाता प्रभु को मैं अगर देखूं तो मैं ये 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट्स है कि मैं बहुत सिंपैथेटिक हूँ, मैं सबके लिए केयर करती हूँ, मैं एक वेल प्लानर नहीं हूँ. ये सब मैंने अपने बारे में लिखा 8-10 चीजें. ये है डिस्क्रिप्टिव. और सामने वाले से जब भी आप जोहारी विंडो करते हो तभी आप उनको ये बता सकते हो कि मेरे बारे में आपने जब मुझे देखा या इतने सालों से आप मुझे पहचानते हो तो क्या क्या दिमाग में आता है मेरे बिहेवियर को देख के, आप वो लिखिए. सो टेल देम टू राइट डाउन समथिंग. ये है वहाँ एक तरीका. दूसरा तरीका ये है कि देयर आर सर्टेन एडजेक्टिव्स, 56 एडजेक्टिव्स हैं व्हिच डिस्क्राइब्स अ पर्सन. तो सेम एडजेक्टिव्स लेके आप पूरे एडजेक्टिव्स अपने बारे में क्या सोचते हैं एक पेपर पे लिख सकते हैं, और जिनसे आप जोहारी विंडो करना चाहते हैं अपना, उनको सेम एडजेक्टिव्स आप दे सकते हैं और कह सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि इन एडजेक्टिव्स में से कितने एडजेक्टिव्स मुझ पे सही फिट बैठते हैं. आफ्टर यू डू दैट, then you start the Johari window, and how you do it I will demonstrate right now. Okay, so Sameer, are you in the audience? Sameer? Yes. Yeah, Sameer. Yes. Okay, Yes. Kritika, are you there? Kritika, are you there? Okay. Leena, are you there? Yes, ma'am. Okay, great. So we have Leena and we have Sameer, and I was just looking for Kritika. Kritika, are you there once again? I think she's there, yeah. So, okay, so not an issue, not an issue. I'll take one more person. So I had seen Sriram. So Sriram, are you there? I think Sriram, are you there? Okay, so let's look at this. Sameer, is there anybody from LCPL who's there, who's joined in? I think Linus is also there. Yes, Sujata, I'm here. Sriram. Yeah. Sriram, good. Okay, fine. So I'll take 3. Ladies and gentlemen, what I'm trying to do over here is I'm taking 3 of the people जिनसे मेरा संबंध रहता है प्रोफेशनली. ये मेरे को सालों से जानते हैं. हमारा रोज का कॉन्वर्सेशन नहीं होता है. जब प्रोजेक्ट के लिए हम साथ में आते हैं तभी हमारी बातचीत होती है. अभी आपके स्क्रीन पे 51 एडजेक्टिव्स है. 51 एडजेक्टिव. Okay, someone's mic is on unmute, so there's a lot of disturbance. Okay, अभी आपने क्या करना है, Leena, at Sameer and Sriram, please pick up at least 6 adjectives that you think best describes me. Okay, now if you don't find anything which is an area of improvement and adjective नहीं दिखता है, so you can add on yours, but out of this you pick up, because I have picked up about 6 for myself. Are we good with that? Are we good with that? Leena, are you understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. So just pick up 6 adjectives which you think best describes me. Sriram? Yes, I've done already. Yeah. What Wow. Yeah. Very good. Yeah. Just let me get a heads up from Sameer. So Sameer and Leena done? 2 minutes, ma'am. Okay, sure. श्रीराम, तुमने बड़ी जल्दी में लिख लिया यार. Sujata, I know you now for so many years. So oh God, it just happens like that. So it's going to be a revelation now for me.
And I'm with you for the last 1 hour. So obviously, I very well anticipate what's coming. So that was fairly simple. So, but anyway, once you let me know, I'll give you my input on this. Sure. I'm done too, ma'am. I'm also done. Done. Okay. Lina? Yeah, I'm done. You said 5, right? 6. 6 chalega. 6. Okay. Yes. Okay. All right. Fine. So I'm just putting the slide once again back. All right. So I have written that I am spontaneous. How many of you have written I'm spontaneous? Oh my God, that was my first one. Okay. So that's spontaneous. Samir, you have written spontaneous about me? No. Okay, sir. Sriram? No. Okay. Now what happens is that when I'm doing a one-to-one, okay, one-to-one जब भी मैं कर रही हूँ, तो that means लीना ने लिखा है spontaneous और मैंने भी लिखा है spontaneous. मतलब लीना जानती है कि मैं spontaneous हूँ, लेकिन श्रीराम और समीर ये नहीं जानते हैं कि मैं spontaneous हूँ. तो ये मेरे कौन से एरिया में आएगा श्रीराम and समीर? Lina, which quadrant of mine will it come when it is with both of you? Will it go in my open, blind, hidden, or unknown? For me, it is Hidden. Absolutely right. Because for Lina, it is open. Yeah. But for Samir and for Sriram, it will come into my hidden area. Right? Fine. I have written, I am observant. Yes, I have written observant. I have written observant too. Very good. So, Lina? I haven't. Okay, great. So, if I'm doing the window with Samir and Sriram, it will come into my open area because it's I know and they know. But with Lina, she has not written it about me. So, it is going to come into my hidden area. I'm friendly. I've written friendly. How many of you have written anything friendly? Not me. Not me. Me too. Not me. So it's unfortunately going into my hidden area. So this is I have written I'm caring. Where is that? Has anybody written caring? No. No. So you people are going to really push my hidden shelf into a bigger one. All right. I have written I'm confident. Yes, I have written, yes. I have written. Okay. I have written too. Oh wow, that means little bit of my open area gets absolutely inflated. Thank you so much. I have written I am indigenous. Not me. Not me too. Not me too. Okay, fine. That means I have to really work on my hidden area. I have written I'm tensed. That's the last one that I have. I have written I get tensed easily. So tense I've written. Anybody? No. No, not me. All right. Not me. So fair enough. So now in the hidden self, so open area mein, whatever has come is known to all the three people. Most of the things have come into my hidden area and none has appeared in my blind area. Now, for instance, blind area is something that we have not taken an example over here for blind area. I will give you an example what might appear in blind area. Is there anything that you guys want to contribute which says what is a blind area? I don't know, but you know. Is there any? You can give me a descriptive also. I have no issues. Yeah. Yeah, Sriram, go ahead. So knowledgeable. Knowledgeable. Okay. So that has come. Knowledgeable. Intelligent. Okay. Very good. So knowledgeable, intelligent, I have not written. It comes into my blind area. So what else? I have written witty. Witty. Okay. That is another good thing that is in blind area, which I don't know. People don't think that about me. Lina, what have you written? So I've written cheerful. Okay. And loving. So, because I've experienced that. Okay. Yes. Okay. All right. Thank you for your contributions. So what I want to make a point over here is that, for instance, blind area में जो भी चीजें आती हैं, जैसे loving, caring, which I have not written about myself. It's a very, क्या बोलते हैं, very nice feeling to understand that people think about you like this. It's not necessary कि आपको अभी इसके लिए मैं feedback नहीं लूंगी लीना से. अरे लीना, तुम you think I'm a caring person. कैसे लगा तुम्हें मैं caring हूँ? ये अपने लिए अच्छी बात है जानने के लिए कि मैं caring हूँ. But if somebody brings the point of if somebody brings a point in blind area like Sujata, I find you very inquisitive. Now, inquisitive can be positive, inquisitive can be negative. I'm sorry.
Can somebody be on mute, please? Okay. So inquisitive can be positive, inquisitive can be negative. जिस बंदे के साथ में आपको ये कमेंट आता है कि you are inquisitive, take it by the meaning of the word inquisitive. Now, when I said, if you want to increase your open area and reduce your blind area, you must follow the method of feedback. Feedback लेना जरूरी है. Now, when feedback लेना is also an art. Suppose करो कि लीना ने मेरे बारे में inquisitive कहा. The first thing, it is extremely important कि आप अपने शब्दों को, आप अपने टोन को, आप अपने बॉडी लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन बना के फीडबैक कैसे मांगते हो. So Leena, the other day we did this activity on the Johari window, and उस वक्त आपने मुझे कहा कि I am inquisitive. So can you please make me understand what do you mean by inquisitive? Because ladies and gentlemen, English is a very funny language. जिस शब्द का अर्थ मुझे एक तरह से समझता है, किसी और का दायरा, किसी और का समझने का पर्सपेक्टिव is different. First find out कि आपको इंक्विजिटिव का किस तरह से आपने मुझे इंक्विजिटिव कहा. अगर लीना ने मुझे कहा नहीं मैडम आप ना हमेशा जानना चाहती है, आप एकदम इंक्वायर करती है कि क्या है, नई नई चीजों को आप, इसके लिए मैं इंक्विजिटिव कहा, उस तक अगर लीना टेल्स मी इन दैट फॉर्म आई एम okay, this is right what she meant by inquisitive. But if Leena tells me, madam, every time we give you a project, you ask us information which is not even important to you. You're inquiring about everything, and I wonder कि वो आपको क्यों पूछते हैं हमेशा. Now this is a sign for me to understand this is what she thinks about me, and I have to ask her कि specific बनो लीना, कौन से प्रोजेक्ट में मैंने किस तरह से पूछा, which led you to believe कि मैं inquisitive हूँ. I hope you are understanding this. Now, blind area हो या hidden area हो, blind area में understand one thing. It is only important to change only if you feel the need to, not because people want you to change. अगर आपको लगता है कि मेरे इस बर्ताव से मेरे फ्यूचर थोड़ा प्रॉब्लमैटिक होता है या माय कम्युनिकेशन इज गेटिंग अफेक्टेड, देन लुक एट इट. सपोज आप टीम में कर रहे हो जोहारी विंडो, 5 जनों ने आपको एक ही चीज बता दी है, आप बहुत इंक्विजिटिव हो, आप बहुत इंक्विजिटिव हो. इट इज एन अलार्मिंग बेल टू फाइंड आउट आफ्टर यू फाउंड आउट फ्रॉम देम कि भैया इंक्विजिटिव का मतलब ये है क्या आपकी तरफ, आपके माइंडसेट में. देन इज अ टाइम टू रिफ्लेक्ट एंड अंडरस्टैंड कि भाई 5 जन बोल रहे हैं, so maybe I should look at it from that perspective. So if that is the case, you need to, now for example, another thing, कोई आपको बोलता है बहुत कंजूस हो, साला पैसा ही खर्चा नहीं करता है. Now this is something you are not aware that people are saying about you. Now it is not necessary that you change for a person who is giving you this information. So मैं समीर को पूछती हूँ, अरे यार तूने मुझे बोला कि आप बहुत कंजूस हो, पैसा ही नहीं खर्चा करते, आपने क्यों ऐसे बोला मेरे बारे में, मतलब आई विल नॉट आस्क क्यों बोला, कुछ इंसिडेंट बताओ समीर जहां पे आपको लगा कि मैं ऐसे हूं. देन ही टेल्स मी कि अरे उस दिन आपने बिल नहीं दिया और समथिंग ही टेल्स मी. नाउ इज द टाइम फॉर यू टू रिफ्लेक्ट कि खर्चा नहीं करता है मतलब क्या है, कि बेफुजूल खर्चा नहीं करता या खर्चा ही नहीं करता है. आपके इस क्वालिटी से आपके घर वालों को परेशानी होती है, क्या आपके बच्चों को कपड़े नहीं है बराबर के, क्या आपकी बीवी जब आपसे कुछ मांगती है आप कुछ देते नहीं हो उनको, देन इज अ कॉज ऑफ कंसर्न. बट एवरीथिंग इज फाइन, आपके बच्चे का एजुकेशन सबसे बेहतर स्कूल में हो रहा है, वहां पे तो आपका हाथ तंग नहीं है. देन यू रियलाइज कि मुझे ये कमेंट सीरियसली लेना है या नहीं. इफ यू आर नॉट कन्विंस्ड, डोंट चेंज. बट इफ यू आर कन्विंस्ड that this is going to hamper your future relationships, then is a time for you to do reflection करना बहुत जरूरी है. So this is the blind area. Now, whenever you ask a feedback, never start your question with why. Why? Strictly no. Reason? When you ask somebody why, you put that person on defensive. वो बंदा समझता है कि आपने ये मन में सोचा हुआ है कि ये गलत है.
There are different ways of asking. Ask, what made you say that? What is your intention of saying this? Which incident led you to believe? किस तरह से आपने मेरे बारे में ये ओपिनियन बनाया? कौन सा वो ऐसा किस्सा है जिसके बारे में आपने मेरे बारे में ये धारणा बनाई? वेरी इंपॉर्टेंट लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बॉडी लैंग्वेज, टोन और शब्दों से दिन रात खेलती हूँ, बिकॉज इस पे मेरे सब रिश्ते कायम है. एवरी टाइम, ऑल द टाइम आई रीविजिट. जिंदगी में ऐसे पड़ाव मेरे जिंदगी में आए हैं जहां पे अच्छे अच्छे रिलेशनशिप को फुल स्टॉप लगा है. फॉर सम इयर्स ऑफ कोर्स पहल की और फिर रिश्ते सुधर गए. इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ किस तरह से बोला गया, किस तरह से सोचा गया, किस तरह से बर्ताव हुआ गया. सो वी स्पोक अबाउट द ब्लाइंड एरिया. हिडन एरिया में और एक बात है ना, हिडन एरिया में आई विल गिव यू 2 इंस्टेंसेस. मेरे बारे में बोल रही हूँ. आई एम नॉट अ गुड प्लानर. अभी मैंने हिडन के बारे में आपको क्या बोला कि लोगों को दर्शाइए, ये आपकी क्वालिटी है, लेकिन आई एम नॉट अ गुड प्लानर. मैं दुनिया को चिल्ला के चीख चीख के बताना नहीं चाहती हूँ, मैं उस पर साइलेंटली काम करना चाहती हूँ. सो देयर आर सर्टेन थिंग्स हिडन एरिया में आपके जो बताना बिल्कुल जरूरी नहीं है. आई एम अ प्रोक्रेस्टिनेटर. प्रोक्रेस्टिनेटर मतलब आज का काम मैं कल पे डालती हूँ, कल का काम मैं परसों पे डालती हूँ. इफ आई एम अ प्रोक्रेस्टिनेटर, मुझे जग भर बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज किसी को टाइम नहीं है, एंड नीदर दे कैन हेल्प मी. आई हैव टू वर्क ऑन इट. बट इफ देयर आर सर्टेन क्वालिटीज जिसके बताने से, फॉर इंस्टेंस ऑफिस में मे बी अ रिसेप्शनिस्ट, उसको रिसेप्शनिस्ट रिटायर नहीं होना है उस ऑफिस में, उसको कोई और लेवल पे भी काम करना है, तो वो बता सकती है कि मैं एक अकाउंटिंग का कोर्स कर रही हूँ क्योंकि मेरे को अकाउंटिंग में बड़ी रुचि है. सो व्हेन देयर आर अप्रेजल्स हैपनिंग, व्हेन देयर आर सम पोजीशंस वेकेंट, पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन उनकी तरफ देख सकते हैं कि ये बनी बनाई है, ये सेल्फ लर्नड है, इनिशिएटिव ले रही है, अकाउंट्स में कुछ करना चाहती है. So that is something that you have to disclose. So this in a nutshell, ladies and gentlemen, is a Johari window which I attempted with my very well cooperative colleagues to help me chalk out a Johari window for me. Now Johari window बता दिया, intention भी बता दिया आपको कि क्यों करना है. क्यों की वजह आपकी है, आपको करना है, किस वजह से करना है, दैट्स एब्सोल्युटली अप टू यू. लेकिन जोहारी विंडो करने के लिए एक प्रीमाइस मतलब एक माहौल बनाना बहुत जरूरी है. जोहारी विंडो का कॉन्सेप्ट आप आज सुन रहे हैं, लोगों को शायद पता नहीं हो. देयर आर पीपल इन माय वर्कशॉप्स व्हेन आई डू अ सपोर्ट ग्रुप कि भाई जोहारी विंडो का एक्सपीरियंस बता दो, किस किस के साथ किया. So there are people who will tell me, मैडम कुछ नहीं, मैंने अपने ऐसे एडजेक्टिव्स का लिस्ट सबको एक पेपर पे दे दिया, बोला चलो टिक मार्क करो, क्या सोचते हो आप मेरे बारे में. दिस इज नॉट एन एग्जामिनेशन और दिस इज नॉट अ मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस. दिस इज समथिंग टू रिफ्लेक्ट योर पर्सनालिटी. दिस इज समथिंग टू अंडरस्टैंड कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, जिसके लिए आपको इंटरेस्ट है, इसके लिए आप कर रहे हैं. डोंट डू इट एज एन एक्सरसाइज और अ सर्वे और पब्लिक सर्वे. प्रीमाइस किस तरह से करना है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जोहारी विंडो उन लोगों से कीजिए जिनके साथ आपके हमेशा संबंध रहते हैं, जिनका ओपिनियन आपको मैटर करता है. पहले घर से शुरुआत कीजिए. हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज वी ऑलवेज वांट टू सीक अदर पीपल्स ओपिनियन हु आर आउटसाइड आवर एरिया, outside our family, because we are wanting to create impressions all the time. First, start from home. Husband, wife, mother, sister, children. You will be amazed and surprised at the number of things that you come to know from the eyes of your children. You will be amazed because they are observing you day in and day out. और my dear friends, घर के लोग वो लोग होते हैं जिन्होंने आपको हर मूड में, हर कपड़ों में, हर रंगों में बिल्कुल निस्वार्थ मन से देखा है. So they are your best people to tell you कि आप कहाँ पे, आपकी छवि उनके मन में किस तरह से बनी हुई है. So it's important to start from home, then look outside. जैसे कि मैंने आज 3 लोगों को चुना
who are my colleagues for a long time, whose opinion matters to me when I'm professionally dealing with them, because they are my backbone, they are my support. कि जब मैं project करती हूँ, इन्हीं लोगों की वजह से मेरा project शायद successful होता है, because इनका support रहता है. So it is important to go to people whose opinions matter to you, and premise करना बहुत बहुत जरूरी है. So whether it is an entrepreneur, whether it is a individual who's listening to me, whether it is an office goer, concept सबको same ही है. Intention और purpose बहुत clear होना चाहिए. Don't do it like the वो हमारे अगर आप मोबाइल पे देखते हैं नेम टेस्ट करके गेम आता है. How will your daughter think about you? Which is the flower that represents you? Johari window is nothing like that. Johari window is a serious look at what your personality says to people when you interact with them. So it's in your interest to understand it very clearly, take it up with seriousness. Now, let me come back to my struggles. The struggle, all the struggles that I listed down, कि one मुझे networking नहीं करती हूँ, मुझे computer literacy है, मुझे क्या बोलते हैं social media से परहेज है. So these are all my hidden areas which I've exposed to you. So once you come to know your Johari window, it is important to take the next step. अब क्या? Window तो कर लिया, उसको मैंने frame करके थोड़ी ना wall पे लगाना है. You need to revisit those quadrants. Open area है, good, keep up the good work. Blind area है जिसमें लोग आपसे बहुत अच्छे से ब्लाइंड एरिया है जिसपे लोग आपकी सराहना करते हैं, आपको अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है. डोंट गेट ओवर द टॉप, हम्बल रहिए. गुड, पीपल थिंक लाइक दैट अबाउट यू. बट सच में अगर लोग आपको कुछ आपके बारे में कुछ ऑब्जर्व करते हैं, देन टेक इट विद अ, डोंट टेक इट इन अ डिफेंसिव मैनर. एक्सेप्ट इट फर्स्ट, because the fact that you started or you wanted to do a Johari window for yourself is acceptance कि मुझे कुछ सुनने को मिलेगा. अच्छा बुरा मालूम नहीं, अब बुरा मिला है, according to them, try and understand how to approach it. So this in a nutshell is what I wanted to share with you. I have used this tool umpteen number of times, and let me tell you, ladies and gentlemen, I also falter. मेरे रिश्ते भी कभी क्या बोलते हैं कुछ टेक अ बीटिंग. मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स से बहुत साल बात नहीं करी है कुछ छोटी छोटी चीजों में. बट इट इज इम्पोर्टेंट, इट्स एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट इज ओनली फॉर सेल्फ डेवलपमेंट. So I want to end up the session by just saying one thing, which is a favorite sentence of mine. Ladies and gentlemen, always try not to be just a face in the crowd. Be the face in a crowd. Thank you for listening to me, and it was a pleasure being with all of you here today. All right, Yash, Vijaya, you can take over. Thank you, madam. Thank you very much. You're welcome. We enjoyed the session very well. Thank you, ma'am, for the wonderful session. Welcome. Thank you. Okay, I'm here, and I think Amol Mule wanted to do the wind up of this session. I don't know where he's gone. He's right here, I think, somewhere. So he said, "Ma'am, you're here." You're here. Here, मैं सोच रहा था कि वीडियो शुरू करूं कि नहीं, बट मैं ऑडियो से ही कवर कर लेता हूं. पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं सुजाता मैडम को, जिन्होंने एक बहुत ही वंडरफुल सेशन कंडक्ट किया है. एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जोहारी विंडो, उसको केवल 1 घंटा 20 मिनट में समझाना, उसके अलग अलग पहलुओं को कवर करना. Absolutely amazing job, Sujata madam. Great job. Please give a big round of applause to Sujata madam. Oh, thank you, Amol. Thank you so much. It was great. It was great. It was great. मैं उनसे बहुत बहुत सहमत हूँ. और जोहारी विंडो की अगर बात करें तो मेरा पर्सनल अनुभव इस टूल और टेक्निक से बहुत गजब का रहा है. तो मैं जैसे कि सुजाता मैडम ने अभी कहा है, सारे ऑडियंस को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टूल को और समझें और सीखें, इसके बारे में और जानें. ये टूल वो टूल है जो आपको अपने रिश्ते मजबूत बनाने में हेल्प करेगा, आपको अपने आप को मजबूत बनाने में, एक अच्छा इंसान बनाने में हेल्प करेगा. ये मैं अपने अनुभव से कहता हूं. ये केवल एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल इस्तेमाल किया जा सकता है. ऐसा एक
कॉन्सेप्ट है। मैंने इसको अपने फादर के साथ में, मदर के साथ में और अपने छोटे भाई के साथ में इस्तेमाल किया कई सालों पहले, और इसकी ताकत, इसका इम्पैक्ट मैंने देखा है। और उस स्वानुभव से, अपने अनुभव से कहता हूं कि सुजाता मैडम ने बहुत उपकार किए आप पर हमकर, कि इतने छोटे समय में, इतने कम समय में एक बहुत ही शानदार टॉपिक आपके सामने रखा है। तो और पढ़िएगा और जानिएगा। आज इस सेशन में जुड़े रहने के लिए करीब 206 210 लोग साथ में जुड़े रहे हैं इस पूरे 1.5 आवर सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि बड़े बिजी शेड्यूल में, हाँ बिजी शेड्यूल है, ये घर में रहना बहुत बिजी है बहुतों के लिए, मैं जानता हूं। सो इस बिजी शेड्यूल में आपने टाइम निकाला है और हमारे साथ जुड़े हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी एक शानदार सेशन होगा और आने वाले, जैसे कि हमने कहा था, 17 तारीख तक एक के बाद एक हम बहुत ही बढ़िया स्पीकर्स और उनके उम्दा कॉन्सेप्ट्स आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि हमारे साथ संपर्क में रह करके अपने कुछ स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं, अपने कुछ स्पेसिफिक नीड्स हैं, आप हमको लिख सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, ताकि हम उन स्पीकर से रिक्वेस्ट करें कि उन विषयों पर भी चंद बातें हों। आप अपने दोस्तों से, कलीग से कह सकते हैं कि ये जो वेबिनार्स हो रहे हैं ये रेलेवेंट है, यहाँ पर प्रैक्टिकल बातें हो रही हैं, यहाँ पर थियोरेटिकल बकवास नहीं हो रही है, और आप औरों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो भी इन वेबिनार्स को ज्वाइन करें। आने वाले दिनों में मेरा और विजय मैडम का एक हम सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं, तो इस स्पेस को देखते रहिएगा। आने वाले दिनों में इन्हीं 12 स्पीकर्स के साथ में हम एक एडवांस्ड लेवल ऑफ सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं, तो इस स्पेस को देखते रहिएगा। सुजाता मैडम का एक बार धन्यवाद देता हूं और उन सभी का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आज हमको ज्वाइन किया है। एक से एक आज हमारे रेगुलर ऑडियंस के साथ साथ कुछ बहुत ही हमारे पुराने क्लाइंट्स और बहुत उम्दा लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं देख सकता हूं कि सलीम भाई अफ्रीका से जुड़े हैं। मैं देख रहा हूं कि भाई हमारे साथ में नरेंद्र मेहता जी जुड़े हैं। मैं देख रहा हूं महेंद्र जैन साहब जुड़े हैं। मैं देख रहा हूं कि तुलसीदास जी सावंत बोरीवली से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में जुड़े हैं। कन्हैया कुमार जी जुड़े हैं। सुनील पाटिल जी पुणे से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में इस वर्कशॉप के दौरान, इस सेशन के दौरान। विजय मालेकर जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। संदीप पातुरकर साहब थे, परिमल मेहता थे आज के सेशन में। शाहिद फ्रॉम हैदराबाद, गुप्ता जी थे हमारे साथ में। एक से एक धुरंधर लोग आज जुड़े हुए थे, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर देवजीत दत्ता साहब आज के